Welcome back, viewers. You're watching The Savera. I'm Shafali. A family in Uttar Pradesh experienced an emotional roller coaster after a woman who had been declared brain dead by doctors unexpectedly showed signs of life while being transported home for her last rites. The unusual incident occurred on the Bareilly-Haridwar National Highway NH74, where a sudden jolt caused by a pothole reportedly helped revive her. The woman, identified as Vinita Shukla, had collapsed at her home on February 22nd while doing household work. She was taken to a hospital in Bareilly for treatment, where doctors later declared her brain dead and informed the family that there was little hope of survival. 2 days later, on February 24, her devastated family began taking her back home, believing she had reached the end of her life. According to her husband, Kuldeep Kumar Shukla, Vinita was barely breathing and had only a faint heartbeat when they left the hospital. को बीपी की शिकायत इन्होंने बताई कि हमें बीपी लग रहा है, कुछ बढ़ा हुआ है। इन्होंने गोली खाई। गोली खाने के बाद करीब आधा या 15 मिनट के बाद ये बेहोश हो गई। और पहले भी गोली खाई, ऐसी कोई बात नहीं थी, उस दिन भी खाई थी। तो यहाँ से ले गए सरकारी अस्पताल से हम। सरकारी अस्पताल वालों ने राय दी कि वहाँ ले जाओ रोहिलखंड आप। हम रोहिलखंड ना ले जाने बजाय मेडिसिटी ले गए मैंने 22 तारीख की रात में, करीब लगभग ऐसी होता 11:30 बजे का टाइम। वहाँ ले गए, वहाँ भर्ती कराया। सोमवार को 23 तारीख को उन्होंने शाम को करीब लगभग 7:30 बजे कहा घर ले जाओ, इनमें कुछ है नहीं, हम रिफ़र कर देंगे, घर ले जाओ आप। इनकी सांस भी कहीं नहीं आ रही है, पल्स भी गिर रही है और बीपी भी दवाई चढ़ा रहे हैं, बीपी भी डाउन हो रहा है। तो हमने मना कर दिया। हम लाए, फिर 24 तारीख को हमने 10 बजे लगभग छुट्टी कराई। इन्हें पीलीभीत ला रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। तो रास्ते में हाफिजगंज के जब आगे गाड़ी पहुंची तो गड्ढे में पहिया पड़ा, वैसे इन्हें सांस आने लगी। एक बार पड़ा पहिया तो इन्हें हल्का मुंह खुला इनका, दोबारा जब पड़ा तो इन्हें सांस आने लगी। सांस नहीं नहीं, सांस आ रही होगी जो हमें तो पता नहीं लग रहा, एहसास हो नहीं रहा था शरीर के ऊपर से। तो फिर वहाँ से हम चले तो हम सीधे लाए राकेश सिंह डॉक्टर साहब के पास। वहाँ इनके हाथों पैरों में कुछ नहीं था, सांस आ रही थी क्लियर। तो वहाँ मेडिसिटी में जो था ये थी उस पर वेंटिलेटर, इन्होंने वेंटिलेटर कुछ नहीं लगाया, बोले आवश्यकता होगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इन्हीं की इलाज चली है, लगभग 10 दिन हो गए, अब फिलहाल सही है और खाना उना भी खा रही हैं। However, during the journey, the ambulance carrying her passed through the Hazifganj area and struck a large pothole, causing a strong jolt inside the vehicle. Shortly after the impact, Vinita reportedly began breathing normally again, leaving the family stunned. Realizing something had changed, her husband immediately halted the funeral preparations and rushed her to a hospital in Pilibhit. Doctors at the faculty conducted fresh examinations and began treatment. Vinita showed signs of recovery and was discharged a day later. Doctors explained that when Vinita was earlier examined in Bareilly, she had shown complete unresponsiveness and lacked brainstem reflexes, which led to the conclusion that she was brain dead. However, after the incident during the ambulance journey, further medical evaluation and treatment at the Pilibhit hospital helped stabilize her condition. For the family, the moment felt nothing short of miraculous. Kuldeep described the experience as if Vinita had conquered death, turning what was meant to be a day of mourning into one of relief and celebration. Let's listen to Dr. and Vinita what she has to say on this. नाम है आपका? मेरा नाम विनीता शुक्ला। क्या हो गया था मैम? थोड़ा सा बीपी बढ़ा हुआ था। उसके बाद क्या दिक्कत परेशानी हुई आपको? बरेली मैंने घर पे ही गोली रखी थी एम्लोकाइंड, वो खा ली 5 mg की। बाकी उसके बाद का पता नहीं, परिवार वालों ने बताया जैसा कि 7 बजे लगभग बेहोश हो गए थे हम। किस दिन की घटना है ये? 22 तारीख की, संडे का दिन था। उसके बाद का आपको कुछ ध्यान है? उसके बाद का ध्यान कुछ भी नहीं, इन लोगों ने जैसा बताया वो जानकारी है, बाकी तो। बरेली में 2 दिन तक इलाज होता रहा, मतलब 22 तारीख की शाम से लेकर 24 तारीख तक इलाज होता रहा, पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो भाई डॉक्टर साहब लोगों ने और बाकी जो उनके रिलेटिव है उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी और फिर वहाँ से छुट्टी करा के ले आया गया और ये सोच के कि भाई अब इनका जो है कुछ नहीं हो सकता है। और क्रिमेशन ग्राउंड पे बेसिकली सारी तैयारियां भी हो गई थी और चूँकि ये
कचहरी में कोई एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ से भी कॉन्डोलेंस वगैरह अनाउंस हो गया था। पर रास्ते में आते हुए मरीज के साथ वालों हो सकता है कि थोड़ा सा जो है सांस कुछ उनको लेती हुई महसूस हुई, तो फिर वो लोग यहाँ पे आए। जब वो यहाँ पे आए तो मैंने देखा उस समय पेशेंट की स्थिति तो काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी सांसें आ रही थी। फिर हम लोगों ने एक एंटी स्नेक विनोम आता है ट्रीटमेंट, वो स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के 24 घंटे के बाद से थोड़ा बहुत मूवमेंट आने लगा, तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये उसी न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से हुआ हो। और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी प्रॉपर डोज गई। बाकी हमारी टीम लगी रही, क्योंकि जब तक मरीज बेहोश होता है, कोमा में होता है, तो बाकी और चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन होने लगता है या बॉडी में क्लॉटिंग होने लगती है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट का इलाज किया गया। 1 हफ्ते के बाद से जब हमारे यहाँ आई, उसके 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे पेशेंट होश में आई और फिर उनको सांस की नली निकली और अब अपने पैरों पे चल के आपको पता ही है कि That's all for now on this update. Stay tuned to the Savira. Download the app and follow us on various social media platforms. That's all for now on this update. Stay tuned to the Savira. Download the app and follow us on various social media platforms.